Yes, our today's topic is secularism. First of all, तो secularism का meaning क्या होता है कि equal respect given to all religions. When equal respect is given to all religion, हमारी country secular country है because in India all religions are treated equally. ठीक है? तो secularism में आप पहले तो बताओगे कि history provide us with many examples of discrimination. In history, we have read about various countries. We have read about various countries where discrimination is going on with the people of different religious groups. First of all, I want to give you example of Nazi Germany. In Nazi Germany, during the period of Hitler, Jews were worst sufferer, and they were not allowed to live in Nazi Germany. They were discriminated. Mass killing of Jews was done in Nazi Germany because Hitler always considered them as from different race or religion. And that's why Nazis in Nazi Germany, Jews were the worst sufferer. And here I'm going to give example of, अब मैं Jews की एक state की example देती हूँ, Jewish state of Israel that treats the Christian minorities in a bad manner. Christian minorities के साथ poor treatment होता है कहाँ पे? Jewish state में Christian minorities जो है ना in Israel, they are worst sufferer. Still discrimination is going on with Christian minorities in Israel. And in Saudi Arabia में भी poor treatment होता है people of different religions. They are not allowed to follow their religion or to follow their religious ceremonies in public. They have to celebrate their religious ceremonies in privacy, not in public. So इस वजह से सऊदी अरेबिया में भी people who are in religious minorities, they are not treated properly by the government. तो सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये दोनों countries example हैं where people of different religions have not given proper rights. They are not treated properly. सेम ऐसी एग्जाम्पल मैं आपको एक और देती हूँ, श्रीलंका. इन श्रीलंका का मेन रिलीजन बुद्धिज्म है, ठीक है, एंड पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, बुद्धिज्म इज द स्टेट रिलीजन इन श्रीलंका, and people who are from different religions, they have to face lots of problems, but these problems people do not face in India because in India we have no state religion. मैंने अभी बताया श्रीलंका में स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म है. अगर आप पाकिस्तान जाओ तो स्टेट रिलीजन इज इस्लाम. अगर आप इंग्लैंड जाते हो तो स्टेट रिलीजन इज, आप कहोगे क्रिश्चियनिटी या वहाँ का उनका अपना है ना. तो अगर हम बोले कि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं. इंडिया में नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू एनी रिलीजन. ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड in an equal manner. Equal respect is given to the people of different religions. No discrimination in India on the basis of religion. So first of all, what is secularism? In previous chapter, you have read about Constitution chapter में about various fundamental rights. And in that, you also have read about right to freedom of religion. By this right, people can follow their religion and propagate it. ठीक है? And but they are not allowed to say anything that hurt the religious sentiments of others. No doubt, freedom of religion is given to the people, but एक तरफ उनके ऊपर restrictions भी हैं. They can't say those words which hurt the religious sentiments of the other people. In our country, next topic is why it is important to separate religion from state. हमारी कंट्री में स्टेट एंड रिलीजन सेपरेट नहीं है. इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके बेनिफिट्स भी हैं.
ठीक है, why it is important to separate religion from state? स्टेट से रिलीजन को क्यों सेपरेट करना चाहिए? यस, होना चाहिए, ऐसा क्यों? यू हैव रेड अबाउट दलित्स, आप दलित्स के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है? हाउ दलित्स वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय हिंदूज, कैसे दलित्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे हिंदूज। इमेजिन कि अगर हिंदूज ही पावर में रहते तो क्या दलित्स की कंडीशन कभी इंप्रूव होती? कभी भी नहीं। अगर पावर होल्डर्स ही डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो आपने आप सोचो, पीपल हु आर इन रिलीजियस माइनॉरिटीज दे विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर गवर्नमेंट मेजोरिटिज्म फॉलो कर ले, अपने रिलीजन को इंपॉर्टेंस दे दे एंड फॉलो मेजोरिटिज्म, देन पीपल हु आर इन रिलीजियस माइनॉरिटीज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव इन सेम स्टेट। उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस स्टेट में रहना, एंड दे आर नॉट अलाउड बाय their power holders to follow their religion. कई बार तो इन्हें इनके रिलीजन, इनके कस्टम्स, इनकी सेरेमनीज इन्हें सेलिब्रेट ही नहीं करने देंगे, बिकॉज पावर होल्डर्स पे डिपेंड करेगा फिर। तो इट मींस स्टेट एंड रिलीजन सेपरेट होना चाहिए फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। स्टेट देयर शुड बी डिफरेंस, स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेटेड। अगर ये एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रखना चाहिए। ठीक, अगर नहीं होता देन पीपल हु आर इन रिलीजियस माइनॉरिटी दे विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। मैंने पहले ही बोला कि कई बार तो उनको उनका रिलीजन भी फॉलो नहीं करने दिया जाएगा। हु आर इन रिलीजियस माइनॉरिटीज, they are forced by the people who are in religious majority not to follow their religion, not to perform their religious ceremonies. For example, that is happening in Saudi Arabia. Saudi Arabia में ऐसे ही हो रहा है। तो same would be happen if अगर state और religion दोनों ही हम कहेंगे कि state का कोई होल्ड नहीं होगा, अगर सेपरेट नहीं होंगे तो पावर होल्डर्स जो है ना, उनके हाथ में अगर पावर और वो मेजोरिटिज्म फॉलो कर लें, देन पीपल हु आर इन माइनॉरिटी दे आर वर्स सफरर। अब एक और रीजन है क्यों स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करना चाहिए। स्टेट को रिलीजन से इसलिए सेपरेट करना चाहिए ताकि पीपल कैन एंजॉय देयर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। People can enjoy their freedom of religion. State should be separate from religion so that people can enjoy their फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नहीं तो अगर स्टेट और रिलीजन सेपरेट नहीं होंगे तो जो लोग माइनॉरिटी वाले हैं वो अपने रिलीजन को प्रॉपरली फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वे से भी वो अपने फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। देयर राइट विल बी वायलेटेड बाय द पीपल हु आर इन रिलीजियस मेजॉरिटी। माइनॉरिटी वालों का राइट वायलेट किया जाएगा। पीपल हु आर इन रिलीजियस माइनॉरिटी, देयर right to freedom of religion will be violated by those who are in religious majority. So state and religion को separate करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो people cannot enjoy their freedom, right to freedom of religion. ठीक है, next अब इसमें हम बताएंगे कि अनटचेबल्स जो है ना वो सफरर थे। हिंदूज उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे। ठीक है, तो अगर पावर्स रहती हिंदुओं के हाथ में, क्या उनकी कंडीशन इंप्रूव हो पाती? नो। बी आर अम्बेडकर ही वाज दलित लीडर। उन्होंने क्या मांगा था आपको पता है? दैट कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स वुड नॉट बी इम्प्रूव्ड टिल दे वुड नॉट कम इन पावर। उन्होंने कहा था इनको भी पावर में लाओ, नहीं तो इन लोगों की कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी। इनको भी गवर्नमेंट में लेके आओ, इनके लिए भी सीट्स रिजर्व करो। That's why seats were reserved for these people ना, ताकि इनकी भी कंडीशन इंप्रूव हो सके। बट अगर इनको पावर में ना लाते क्या इनकी कंडीशन इंप्रूव हो पाती? मे बी नॉट। नो, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? इन इंडिया पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स, लॉ कोर्ट्स, ऑफिसेज आर नॉट सपोज्ड टू प्रमोट एनी वन रिलीजन। ये किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। आप कहीं भी चले जाओ, लॉ कोर्ट्स, फिर आप स्कूल्स में देख लो, गवर्नमेंट स्कूल्स में देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, पुलिस स्टेशंस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस,
वहां पे किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता। इन गवर्नमेंट स्कूल्स में तो रिलीजियस फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट नहीं किए जाते। इट्स नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द स्कूल्स। ठीक है, उन रिलीजियस फेस्टिवल्स के दिनों में पब्लिक हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड। On days of religious festivals, public holidays are declared so that people can celebrate, enjoy those festivals at their homes. Schools में मैंने बोला no religious festivals are celebrated. किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बिल्कुल भी नहीं। No importance is given to any one religion in schools. ठीक है, नहीं दी जाती। No religious festivals are celebrated in the schools. On that days, public holidays are declared so that people can enjoy those festivals at their homes. अब इंडिया में गवर्नमेंट ने रिस्पेक्ट की सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट ने दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट की और उनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं किया, इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स। किसी भी रिलीजन में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया इन इंडिया। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो सिख पीपल जो है ना, दे आर नॉट फोर्स टू वेयर हेलमेट्स। उन्हें हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं किया जाता वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर्स। जब ये टू व्हीलर्स चलाते हैं जैसे बाइक है, एक्टिवा है, तो दे आर नॉट फोर्स टू वेयर हेलमेट, क्योंकि पगड़ी जो पहनी होती है तो उसके लिए उन्हें फोर्स नहीं किया जाता। तो मींस गवर्नमेंट ने सिख कम्युनिटी के लोगों के रिलीजियस, आप कह सकते हो ट्रेडिशंस या उनके कस्टम्स की रिस्पेक्ट की कि उनके पगड़ी पहनी जाती है। दैट्स वाई हमारी गवर्नमेंट ने उनको, सिख कम्युनिटी के लोगों को फोर्स नहीं किया। किस बात के लिए? टू वेयर हेलमेट। वो हेलमेट नहीं पहनते, आपने देखा ही होगा कि वो लोग पगड़ी पहनते हैं। तो इन दिस वे हमारी स्टेट इंडिया का सेकुलरिज्म ऐसा है कि वो इंटरफेयर ही नहीं करता। ठीक है, अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। रिलीजन को क्यों सेपरेट रखना चाहिए स्टेट से? तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे ना कि अगर रिलीजन सेपरेट रहेगा तो किसी के साथ डोमिनेशन नहीं होगी। People who are in religious minority, they will not have to face any kind of problems. They will enjoy their festivals and customs, जो भी हैं उनके, in a proper way. They can enjoy their right to freedom of religion. ठीक है, स्टेट को रिलीजन में इंटरफेयर नहीं। अगर स्टेट फोर्स कर देती सिख लोगों को कि हेलमेट ही पहनना है तो यहाँ पे क्लैशेस होने थे। तो इट मीन्स स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती। ठीक, अब इंडिया का सेकुलरिज्म कैसा है? व्हाट इज योर टॉपिक इज व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। अब इंडिया का सेकुलरिज्म कैसा है? इन अवर कंट्री पीपल कैन फॉलो एनी रिलीजन एंड प्रोपोगेट इट। ठीक है, दे इंजॉय देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन अवर कंट्री। Equal respect is given to all religion. So this is about Indian secularism. अब इंडिया का सेकुलरिज्म कैसा है? No discrimination on the basis of religion. Equal respect is given to all religion. People can follow and propagate any religion. People who are in religious majority cannot say those words which hurt the feelings of the people who are in religious minority. ऐसा उनकी फीलिंग्स को, उनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वे से इंडिया का सेकुलरिज्म जो है दैट इज हम कहेंगे कि बेस्ट है। इंडिया में इक्वल राइट्स आर गिवन टू द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट इज गिवन टू द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट आप कह सकते हो कि sometimes state intervene in religious matters. कई बार स्टेट रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन करती है। कई बार वो गुड भी होता है स्टेट का इंटरवीन करना, इंटरफेयर करना कई बार
इन रिलीजियस मैटर्स समटाइम्स वुड बी बेनिफिशियल, कई बार बेनिफिशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दलित्स वाले मैटर में स्टेट इंटरफेयर ना करती, हिंदू कम्युनिटी कैसे अपने लोगों के साथ, लो कास्ट लोगों के साथ पुअर ट्रीटमेंट कर रही थी, वो दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द हाई कास्ट हिंदूज, अगर स्टेट उसमें इंटरफेयर ना करती। आपको पता है ना कि अनटचेबिलिटी लॉ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वाज पास्ड, बी आर अम्बेडकर ने एक्ट पास किया था बाय विच अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बैंड अनटचेबिलिटी। तो अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर किया तो इनकी कंडीशन हुई ना इम्प्रूव के, गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया दैट, कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बैंड अनटचेबिलिटी बाय लॉ। तो इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, इन दिस वे स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन इन द रिलीजियस मैटर्स। किस कम्युनिटी के रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर किया? हिंदू कम्युनिटी। अब एक मिनट में यहाँ पे एक छोटा सा और मैटर भी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, in India there were so many social events were going on in आप कह सकते हो कि जब ब्रिटिश आए तो इंडिया में बहुत सारे सोशल इवेंट्स थे, सच एज सती प्रथा, है ना, विडो चाइल्ड मैरिज, पोलीगैमी, सब थे इंडिया में, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्मर्स रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस, बट हिंदू ऑर्थोडॉक्सी वो इस बात को मानने को रेडी नहीं थी। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को होता था कि ये सारा हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग हो रहा है, सती प्रथा हमारे रिलीजन में है। तो आपको पता है राजा राम मोहन राय रेड द वेदास, उन्होंने सारे वेदास पढ़े एंड देन ही डिक्लेयर्ड के वेदास में तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि सती प्रथा शुड बी फॉलोड। तो इस वे से स्टेट जब इंटरफेयर करती है तो ये सारे इवल्स सब बैन हुए। नो डाउट ब्रिटिश थे, बट सोशल रिफॉर्मर्स ने ब्रिटिश की हेल्प के साथ, क्योंकि पावर तो ब्रिटिश के पास थी, तो सोशल रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बैन करवाया, तो विलियम बेंटिक ने एक्ट पास किया था एंड सती प्रथा वाज बैंड, ठीक है। तो मीन स्टेट जो है ना कई बार इंटरफेयर करके कुछ इम्प्रूवमेंट करती है। अब स्टेट के इंटरफेयर होने से भी एक्ट वाज पास, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट एक्ट पास किया। कौन सा एक्ट? आर्टिकल 17 के थ्रू उन्होंने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। तो इट मीन स्टेट गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करती है तो रिफॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। और समटाइम्स हम कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे रिलीजियस कम्युनिटीज को राइट दिया हुआ है, एक और वे से हम कहेंगे इसका बेनिफिट होता है जब स्टेट इंटरफेयर करती है। तो कैसे? फर्स्ट तो मैं कहती हूँ कि प्रोटेक्शन मिलती है पीपल हु आर इन रिलीजियस माइनॉरिटीज। अगर स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो प्रोटेक्शन किसको मिल जाती है? जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज में है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं कहूंगी वी हैव गिवन राइट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज have given right by the constitution to set up their educational institutions in India. आपके जलंधर में ही ले लो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल MGN स्कूल सिख कम्युनिटी, शिव ज्योति हिंदू कम्युनिटी, आपको APJ स्कूल क्रिश्चियन, या सेंट जोसेफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, जैन पार्वती जैन कम्युनिटी। इट मीन्स different religious community can set up their educational institutions in India. Different communities set up कर सकती हैं, but वो बच्चों के एडमिशन भी तो नहीं ना डिनाई कर सकती on the basis of religion. And these institutions are given grants by the government. इनको गवर्नमेंट ग्रांट्स भी देती है, ठीक है। इट मीन्स हमारे यहाँ पे अगर स्टेट इंटरफेयर करती है तो उसके कई बार बेनिफिट्स भी होते हैं। सेट अप देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट कम्युनिटीज कैन सेट अप देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, but these communities cannot deny the admission of the children on the basis of religion, and these schools are given grants, aids by the financial aids by the government इन्हें financial aids भी देती है, ठीक है। so this is about Indian secularism. it means कहीं ना कहीं इंडिया में स्टेट जो है रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है ना। आपको समझ आई कैसे कर रही है? अगर नहीं करती होती तो क्या दलित्स की कंडीशन इंप्रूव होती? नहीं। अगर इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर किया, उसने आर्टिकल 17 के थ्रू अनटचेबिलिटी को बैन किया, ठीक है। तो इट मींस क्या इंडिया में अगर स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करती होती तो सती प्रथा बैन होती? नहीं। तो ये जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करती हैं, and these communities are given grants by the government.
तो इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर करती है। इंडिया में हम कहेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि अगर वो इंटरफेयर करती है। बट अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी यूएस में ये टोटल डिफरेंट है केस। इन यूएस स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स। इंडिया में स्टेट कैन इंटरवीन इन समटाइम्स, हर बार नहीं, समटाइम्स स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर्स। जैसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो स्टेट कैन इंटरवीन, बट इन यूएस स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर्स। वहां पे स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती इन रिलीजियस मैटर्स, whereas in India state can intervene। अब मैं बोलूं कि स्टेट इंडिया में इंटरवीन कर सकती है, गिव एग्जांपल, तो यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ दलित्स, अनटचेबिलिटी, जो आर्टिकल 17 के थ्रू अनटचेबिलिटी जो बैन हुई, आप वो एग्जांपल बता सकते हो। ठीक है, तो इस वे से आप कह सकते हो कि स्टेट जो है वो इंटरवीन कर सकती है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए। जैसे एक मिनट मैं कहूँ कि पहले का क्या करते थे, इन्फेंटिसाइड, फिटिसाइड, छोटे छोटे बच्चों को मार, गर्ल चाइल्ड को मार देते थे, तो ये भी तो गवर्नमेंट ने बैन किया ना। दिस इज ऑल्सो बैंड बाय द गवर्नमेंट। फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फीमेल फिटिसाइड ये भी तो फॉलो किया जाता था। बर्थ से पहले या बर्थ के बाद फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता था, तो दैट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द स्टेट। तो ये भी स्टेट ने इलीगल डिक्लेयर किया। इट मीन्स कई बार स्टेट इंटरवीन कर सकती है रिलीजियस मैटर्स में। ठीक है, कई बार गवर्नमेंट करती है, बट करती है तो उसके बेनिफिट्स भी। ठीक, तो इस वे से, बट कहाँ की गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, यूएस में गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर्स। सो दिस इज अबाउट सेकुलरिज्म। अगर आपको मैं बोलूँ सेकुलरिज्म, तो आपको 1 मिनट में आना चाहिए। अ स्टेट इन विच all the religions are treated equally, no discrimination on the basis of religion, equal respect is given to all religion। आप कुछ भी लिख सकते हो, people can follow any religion and propagate it। ठीक है, तो इस वजह से, एंड इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री बिकॉज इन इंडिया देयर इज नो स्टेट रिलीजन, all religion are treated equally, whereas we can say if we go to Sri Lanka then state religion is Buddhism, if we go to Pakistan state religion is Islam, whereas in India there is no state religion।